Welcome back. I know some of you might not be that much interested because you're from a different background. But let it be IT, let it be civil, let it be any department. This is the very essential and the vital component, because without water, there is no life. So I do believe कि ऐसा situation ना आए, but we are working on in this particular sector. I had been to Rajasthan, and to be very honest, I have seen people cleaning their utensil without water, just with sand. They are rubbing it, then they just wipe it up with the clothes. So we have seen people struggling to get a bucket of water for drinking purpose. So actually, there is the water crisis, but unless and until our tap runs dry, we don't feel the pinch. That is a fact. Okay. So you are the future generation. The country lies in your hand. So आप किसी भी department में काम करो, you need to understand, because this is the most fundamental thing that we need for this. For our life, for the future generation. So कहीं भी आपको लगता है, because since I'm working in a central department, so Ministry of Jal Shakti, we do focus that every individual, हम यहाँ पे भी नहीं, to be very honest, हर एक college में जाके अलग-अलग department में we do aware them, because after this I will be showing you a case study जहाँ पे हमने इतने सारे डेटा उसको इंटीग्रेट किया, उसको GIS प्लेटफॉर्म में लाया to visualize a three-dimensional view of the aquifer system, कि exactly हमारा जो underground system है वो कैसे दिखता है, और हर एक एक्विफर का lateral extension कितना है, vertical extension कितना है, हर एक एक्विफर के हमने रिसोर्स निकाले, उनका क्वालिटी चेक किया. So I will be showing you that. So जो भी मैनेजमेंट प्लान हमने दिखाया है, unless and until the people at the grassroots level understand this, ये मैनेजमेंट प्लान सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है. सो अल्टीमेटली इट्स नॉट कि आई एम हियर, ऐसे भी हम हर एक को ट्राई करते हैं टू एजुकेट देम, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रियल इश्यूज एंड चैलेंजेस दैट द कंट्री इज गोइंग टू फेस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू ओवर हियर. अगर बीच में आपको कोई भी लगता है यू नीड टू डिस्कस समथिंग, डू लेट मी नो. ओके, this I'm not going to discuss, already discussed. Now, the case study, which I was talking about the aquifer mapping, कि हम किस तरह से अपने ग्राउंड वाटर सिस्टम को मैप करते हैं. जब तक हम एक थ्री डायमेंशनल व्यू एक उसको क्वांटिफाई नहीं करें ना, देन इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज विथ. ओके, सो लेट मी शो यू. I believe some of you had been to the coastal states also. Coastal states of our country. Let's see. Coastal state pe there is heavy pumping, because lot of hotel industries, tourism are there. So a lot of heavy pumping that leads to decline in the groundwater. Then वहां पे हमारा जो ग्राउंड वाटर या पीजोमेट्रिक हेड है वो बहुत नीचे आ जा रहा है. सो व्हाट एज अ रिजल्ट ऑफ विच ना, समुद्र का पानी ऊपर है, ग्राउंड वाटर हमारा नीचे आ गया है. तो वाटर ऑलवेज टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम अ हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन. प्रेशर आप कोई भी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाई एंड टू लो एंड, सेम हैपेंस विद द ग्राउंड वाटर. सो जो सलाइन वाटर है दैट कम्स इनटू द फ्रेश वाटर, जो हमारा नीचे वाला फ्रेश वाटर है वहां पे हमारा सलाइन इनग्रेस हो जाता है. ओके, so the entire aquifer is spoiled, it is of no use to us. Then कहीं कहीं पे heavy pumping से पानी, नीचे का saline पानी भी ऊपर up coning हो जाता है. Then well turning saline after certain period of use due to insufficient well designing. Coastal aquifer में होता क्या है, normally एक लेयर आपको फ्रेश मिलेगा, उसके नीचे सलाइन होगा या उसके ऊपर सलाइन होगा, तो ऑल्टरनेट फ्रेश एंड सलाइन लेयर मिलते हैं. तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अटमोस्ट केयर दैट शुड नॉट बी इंटरमिक्सिंग ऑफ द फ्रेश एंड द सलाइन जोन. मतलब वो जो वेल कंस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, जब हम अपना स्क्रीन उसमें डालते हैं तो वेरी केयरफुली हमें डालना पड़ता है. देयर शुड नॉट बी एनी इंटरमिक्सिंग ऑफ द सलाइन एंड द फ्रेश एक्विफर. And definitely heavy urbanization leading to pollution in the coastal area.
सो मैं एक केस स्टडी आपको दिखाना चाहती हूँ. दिस इज फॉर द स्टेट ऑफ उड़ीसा. सेम चीज इट हैज बीन डन फॉर द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो, बट सिंस आई हैव डन हियर इटसेल्फ, तो मैं अपना केस स्टडी आपको दिखाना चाहूंगी. सो हियर यू कैन सी दिस इज द कोस्टल स्ट्रेच. दिस इज बॉर्डरिंग द बे ऑफ बंगाल. हियर यू कैन सी. सो दिस इज, अगर हम सेपरेट कोस्टल को अलग कर दे, दिस इज हाउ द कोस्टल स्ट्रेच लुक्स फ्रॉम सुबर्णरेखा इन द नॉर्थ टू वी आर हैविंग द रुसिकुल्य रिवर इन द साउथ. ओके. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो कोस्टल एक्विफर होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. वहां पे कभी आप देखेंगे कि सलाइन वाटर ओवरलाइंग फ्रेश वाटर. Sometimes you will see fresh water overlying saline water. Sometimes there is an alternate layer of fresh and saline. And कभी कभी होता है कि the entire aquifer system is saline. तो यहाँ पे ये बहुत चैलेंजिंग इशू होता है एज अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट कि हम सक्सेसफुल वेल कैसे डेवलप करें ताकि वो जो गांव वाले हैं जहाँ पे भी हमें वाटर सप्लाई करना है उसको हम कैसे करें. तो इट्स अ चैलेंज फॉर अस. तो अगर हम उड़ीसा में देखें, आउट ऑफ 42 डिस्ट्रिक्ट्स जो भी 42 ब्लॉक्स हैं उसमें से 6 आर टोटली सलाइन एंड 36 ब्लॉक्स वो पार्शियली सलाइन थे. ओके. नाउ वाटर लेवल देखा जाए, हियर यू कैन सी हमारे जो भी मॉनिटरिंग के डेटा है, दिस प्री मॉनसून में अगर देखें वाटर लेवल इज 2 to 5, नो इशू. पोस्ट मॉनसून में बारिश हो गया, वाटर लेवल इज ऑल्सो 0 to 2, कोई इशू नहीं है. बट यहाँ पे द मेन इशू था जो सैलिनिटी का इशू था. ओके. हियर यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमारी कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है. और ये जो पर्टिकुलर पैच देखेंगे आप, हियर फ्रेश वाटर इज ओवरलेन बाय सलाइन वाटर और यहाँ पे ग्राउंड वाटर फ्रेश विदाउट सैलिनिटी हजर. ये पूरा फ्रेश है बट यहाँ पे हमारे को सैलिनिटी मिल रहा है. हमने एक पैरेलल डायग्राम बनाया पूरा कोस्टल का, कहाँ पे फ्रेश है कहाँ पे सलाइन है. सो हियर यू कैन सी ये पूरा फ्रेश है बट ये सलाइन है. दिस इज प्रायर टू एक्विफर मैपिंग. जब पहले हम करते थे, सो दिस वाज द पिक्चर. बट व्हेन वी गो फॉर मैनेजमेंट प्लान, कोई एक पर्टिकुलर विलेज में सपोज यहाँ पे हमें बोला कि आप मैनेजमेंट प्लान दो. जब हमने वहां पे एक्सप्लोर किया तो पता चला कि नहीं यहाँ पे भी सैलिनिटी इशू है. सो दीज आर द इश्यूज. इसी के लिए हमने डिसाइड किया कि नहीं हम एक्विफर वाइज हम अपने जोन को आइडेंटिफाई करेंगे. So हमने aquifer mapping किया. This was prior to aquifer mapping. Then aquifer mapping में, as I said, lot of data has been integrated on a GIS platform. So these are the different maps. So let me show you. हर एक section को अलग अलग based on the exploration data. Like in CGWB, we do lot of exploration to understand the aquifer geometry. कि वहां की प्रॉपर्टी क्या है, वो रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो रॉक कितना पानी ले सकता है, हाउ मच वाटर इट कैन इल. जो जितने भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्विफर की, हमने इस A सेशन में हमने स्टडी किया विद दिस नंबर ऑफ बोरवेल्स. हर एक की लिथोलॉजी को हमने कंपाइल किया एंड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर कुछ मैनुअली किए. सो आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर सेक्शन में इंडिविजुअल एक्विफर, ये जो ब्लू है दीज आर द फ्रेश और इन बिटवीन देम इज द थिक क्ले. तो जब क्ले एक लेयर के बीच में आ जाए, ऊपर सैंड है नीचे क्ले है, तो क्ले क्या करता है, इट डजंट अलाउ टू वाटर टू इन्फिल्ट्रेट डाउन. ओके. उसकी क्या है, पोरोसिटी है बट परमेबिलिटी 0 है. सो वो पानी को अलाउ नहीं करता है नीचे जाने के लिए. सो अगेन दिस येलो सेक्शन ये पानी है बट दिस इज सलाइन, देन इट इज ऑफ नो यूज टू अस. तो ये हमारे लिए चैलेंज यहीं पे आ जाता है. अनलेस एंड अंटिल वी हैव, बिकॉज ग्राउंड वाटर इज इनविजिबल, टू मेक इट विजिबल यू नीड टू हैव दिस डेटा. सो विथ दिस डेटा वी कैन क्लियरली से, क्योंकि हमारी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई यहाँ तक इतने डेप्थ तक वेल नहीं है. सो दिस क्वेश्चन इज स्टिल नॉट नोन टू अस. सो मे बी फर्दर आगे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. ओके. बिकॉज एट अ टाइम एक्सप्लोरेशन लॉट ऑफ मैन पावर, लॉट ऑफ मनी इनपुट है उसमें. सो एज पर द रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे वेल किए. अगेन और एक सेक्शन का, दिस इज हाउ अगेन वहां का एक्विफर सिस्टम इस टाइप का है. वहां पे देखिए, वहां का आपने पैनल डायग्राम देखा था कैसा था. यहाँ पे देखिए फ्रेश सलाइन इंटर, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन फ्रेश एंड सलाइन. तो चेंज हो गया विथ मोर नंबर ऑफ डेटा, क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे पास. अगेन दिस इज द 3-dimensional व्यू. यहाँ पे हम देखेंगे क्ले लेंसेज हाउ दे आर मूविंग अक्रॉस द एंटायर स्टेट. ओके. सो अगेन दिस इज येट अनदर सेक्शन. जहां जहां पे इश्यूज थे उस पर्टिकुलर इशू को हमने जब हम फील्ड लेवल में काम करते हैं
तो वी गो टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पहले फर्स्ट में हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है वी इंटीग्रेटेड, देन वी गो डिस्कस विद द पब्लिक, द लोकल पीपल की आपका यहाँ वाटर रिलेटेड क्या इशू है, किसने बोला कि नहीं मेरा वेल में पानी है, उनका वेल में पानी नहीं है, समवन सेज कि मेरे यहाँ पे बर्तन लाल हो जाते हैं, दैट मीन्स देयर इज सम आयरन इशू। फिर हम रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं, फिर लगता है कि नहीं दिस पर्टिकुलर एरिया इज हैविंग सम इशू, फिर हम उसको और डीपर स्टडी के लिए मोर नंबर ऑफ की वेल्स एस्टैब्लिश करते हैं ताकि हमको और डेटा जनरेट हो सके। नाउ दिस पूरी डिस्ट्रिक्ट, द प्लेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मैंने ये टॉपिक मतलब ये डिस्ट्रिक्ट इसीलिए लिया कि एवरीवन इज वेल अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे हमने देखा इनलैंड सैलिनिटी है, सी वाटर इनग्रेस है, आयरन है, फ्लोराइड है, कोस्टल हैजार्ड है, बिकॉज सिंस द डिस्ट्रिक्ट इज नियर टू द बे ऑफ बंगाल तो साइक्लोनिक सर्जेस होते रहते हैं, ओके, एंड विद टाइम इट इज इंक्रीजिंग। तो जब भी साइक्लोन आता है तो वहां पे फ्लड इनुंडेशन हो जाता है, तो अगेन जो समुद्र का पानी है हमारे फ्रेश वाटर सिस्टम में आ जाता है, तो सैलिनिटी इशू रहता है। ऑलरेडी स्टेट ने कुछ कुछ काम किया हुआ है, दैट ऑल्सो वी हैव इंटीग्रेटेड। फिर हमने देखा कि नहीं सिंस हमारे पास रिसोर्सेस कम है तो हमने इंडिविजुअल एक्विफर को जब आइडेंटिफाई किया उसके रिसोर्स कैलकुलेशन के, दीज आर द रिसोर्स वी हैव कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द जीईसी 2015 मेथोडोलॉजी, ओके। हर एक रिसोर्स में कितना पानी है, अगर हम जैसे कहते हैं कि 70% तक अगर है तो हम सेफ हैं, तो हमारे पास 60%, अगर हमारे पास जो भी 60% से 70% आने में जो 10% का सरप्लस है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, मे बी आपके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट जो भी सरप्लस पानी है हमने उसको कहाँ कैसे यूटिलाइज करेंगे उसका एक कैलकुलेशन दिया। एंड सिंस आई सेड कि वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हम बताते हैं बट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज द स्टेट डिपार्टमेंट, तो we share all the findings with the state department, we share the findings with the local people at the panchayat level, so that this is the situation, now it's you to manage the resource, okay। again आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ जब पानी बच गया उसको हम कहाँ लेंगे, रिसोर्स टू बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा रिसोर्स है ब्लॉक वाइज, तो हमने बोला कि आप और इतने नंबर ऑफ वेल्स क्रिएट कर सकते हो अगर आपको इरिगेशन के लिए चाहिए, तो इतना वेल्स या तो ट्यूबवेल या तो डगवेल आप क्रिएट करके आप अपने लैंड को इरिगेट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एक फार्मर को क्या चाहिए कि हम कितना वेल बना सके, किस डेप्थ में बना सके, कितना पानी निकाल सके, सो दिस इज हाउ वी वर्क आउट, ओके। अगेन और एक डिस्ट्रिक्ट जस्ट शॉर्ट रन में मैं आपको दिखाऊंगी, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, अगेन अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स है दे कैन वेल अंडरस्टैंड ये जो डिफरेंट अलुवियल फॉर्मेशन है, बैंडेड नेसिक कॉम्प्लेक्स है, इंट्रूसिव्स है, लिनियमेंट्स है, सब कुछ को हमने उसको एक मैपेबल फॉर्म में लाया। देन एज आई सेड इज अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे सैलिनिटी हजार्ड सॉरी आई मीन टू से फ्लड इनुंडेशन काफी है यहाँ पे। दिस इज द 3-dimensional view. By integrating all the different data, this is the final output that we have prepared. यहाँ पे we have identified 3 different aquifer. One is aquifer 1 up to a depth of 50 meter, जो कि weathered होते हैं ना, जो खुले हल्का हम खोद दो तो बहुत लूज रहते हैं, that is called the aquifer 1, 50 मीटर के डेप्थ पे है। From 50 to 150 it is the aquifer 2, और 150 से below 300 मीटर तक that is aquifer 3। तो डेप्थ वाइज हमने एक्विफर को डिमार्केट कर दिया। अगेन आप देखेंगे दिस येलो वन, यहाँ पे सैलिनिटी इशू है। द पिंक वन, दीज आर द ग्रेनाइट, ये हार्ड रॉक है बट ये सारे हमारे एलुवियम है, ओके, सैंड है, क्ले है, सिल्ट है, ये वो फॉर्मेशन है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लाइटर पिंक है, ये ब्रैकिश वाटर है। वाटर के भी अलग अलग वैरायटी होते हैं, देखिए ब्लू वन इट इज फ्रेश वाटर, पोर्टेबल, आप बस पंप से निकालिए और पीजिए, नो इशू। द येलो वन सलाइन है, आप इसको पी नहीं सकते हैं। द पिंक वन इज अ ब्रैकिश, क्या डिफरेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द टीडीएस लेवल, अगर 3000 मिलीग्राम तक है वी कंसिडर इट एज फ्रेश, 3000 से 10,000 मिलीग्राम पर लीटर है टीडीएस तो उसको हम ब्रैकिश में लेते हैं, 10,000 से 35 है तो सलाइन में लेते हैं, और मोर देन 35 है देन वी कंसिडर इट एज अ ब्राइन, अलग अलग कैटेगरी होती है। सो यहाँ पे देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर एक्सप्लोरेटरी वेल हमने अलग अलग सेक्शन भी काटे हैं सो दैट बेटर विजुअलाइजेशन, एक
ले मैंने पब्लिक को हम बता सके कि ये एग्जैक्टली आपका गांव है एंड दिस इज वेयर I mean the groundwater situation is to make the invisible resource visible. This is how we have worked out. So वहां पे देखा गया अगर इश्यूज, हमने पहले डिस्पोजिशन बनाया, फिर हर एक एक्विफर का इश्यूज आइडेंटिफाई किया. तो मैं जस्ट एक शॉर्ट ये मैं आपको दिखाऊंगी. दिस पर्टिकुलर पैच यहाँ पे देखा गया कि एक ट्रॉ जैसा हो गया है, एक सिंक टाइप का हो गया है. तो सिंस ये कोस्टल एरिया के क्लोज है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ सी वाटर इनग्रेस. तो हमने ये पहले गांव वालों से पहले जब पता किया तब पता चला, देन फील्ड ऑब्जर्वेशन किया गया. सो फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि दिस एरिया इज वेरी डिपेंडेंट ऑन मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हेवी विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है यहाँ पे. दिस 1 नंबर जो आपका डिमार्केट है, तो बिकॉज ऑफ दिस हेवी विड्रॉल फॉर ग्राउंड वाटर देयर इज अ डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर. ओके, सो एक ट्रॉ, एक सिंक फॉर्म हो गया है. फिर हमने देखा कि यहाँ का एलिवेशन, ये तो समुद्र के पास में है, द एलिवेशन इज वेरी लेस. और एक देखा गया कि जब भी बारिश होता है यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है. दैट वाज अ फील्ड ऑब्जर्वेशन दैट हैज बीन कैरिड आउट. ओके, और बारिश यहाँ पे 1700 mm की हो रही है, फिर भी हमारा ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है. तो नाउ कम्स द इशू कि हम क्या मैनेजमेंट यहाँ पे दे सकते हैं. तो सबसे पहला चीज तो हमने बोला कि भाई आपके पास सरप्लस सरफेस वाटर है, व्हाई यू आर विड्रॉइंग द ग्राउंड वाटर. अभी ऑलरेडी आपका ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो गया है. It's high time that you focus, you shift to the surface water resource. Okay, that is the first thing. Then second thing, हमने यहाँ पे augmentation या recharge के लिए स्कीम दिया, because it is believed in groundwater जो भी एक्विफर दे सकता है पानी वो ले भी सकता है. Okay, since water table was declining, बहुत नीचे चला गया था, तो जो भी surface water हमारे पास थी, बारिश sufficient थी, तो हमने क्या किया, वो बारिश का पानी को वहां पे डाइवर्ट कर दिया for recharge purpose. Okay, so that is one thing that उसके लिए 500 wells आइडेंटिफाई किए गए जिनमें हमने रिचार्ज स्ट्रक्चर किए. तो डेफिनेटली ये हमने स्टेट के साथ शेयर किया. तो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस वन बिकॉज ये ऑलरेडी एक सेमी क्रिटिकल एरिया में है. तो विद दिस वो जो वाटर टेबल ट्रॉ हमारा हुआ था, डेफिनेटली इट विल कम अप. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑल द इश्यूज. Again, this particular patch यहाँ पे salinity issue है. As you can see, there is a salinity issue, 100 square kilometer in the eastern part and 50 square kilometer in the central part are saline affected. Okay. Then the aquifer disposition shows that first aquifer was completely saline. तो इसके लिए हमने क्या मैनेजमेंट किया, हमने बोला कि in the northern east part only deeper aquifer, क्योंकि ऊपर वाला saline था, deeper fresh था. तो हमने बोला आप ऐसे पानी को निकालो सो दैट इंटरमिक्सिंग ना हो. देयर शुड बी प्रॉपर सीमेंट सीलिंग. हम जब ड्रिल करते हैं तो प्रॉपर सीमेंट सीलिंग देंगे ताकि देयर शुड नॉट बी एनी इंटरमिक्सिंग ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द सलाइन वाटर. सो सीमेंट सीलिंग इज वेरी एसेंशियल एंड देयर कम्स द रोल ऑफ अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट. So again, this is another 3-dimensional view of another district, again another coastal district. So you can well imagine how much pain, how much work has been carried out, how much data has been integrated to give this kind of output, because this is the output that we have given to the State Department. This is the output on the basis of which the State Department, the Panchayat level, the entire ministry is working. So we have to work very meticulously जब हम कोई भी चीज को identify करते हैं. Here you can see this is the first aquifer up to a depth of 50 meter. Then 50 to 100 it is the second aquifer. यहाँ पे आप देखेंगे first aquifer में पानी नहीं है because ये clay है. Okay, तो फिर यहाँ पे जो लोग थे उनको हमने बोला कि आपको इतना डेप्थ में 50 मीटर में पानी नहीं मिलेगा, you have to drill further. तो again you have to tap the second aquifer. यहाँ पे आप देखेंगे फिर third aquifer बहुत नीचे है. So this is how अगेन यहाँ पे भी आपका सलाइन है, फ्रेश है, ब्रैकिश है, एवरी जो मैंने कहा कि हम क्वालिटी टैगिंग भी करते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव डन. अगेन दिस इज येट अनदर डिस्ट्रिक्ट, 3-dimensional view of the Cuttack district. If anyone of you are aware of this district, उड़ीसा का अगेन अनदर पहला कैपिटल सिटी था, you can say. Now it is Bhubaneswar. This is the first capital city. So यहाँ पे भी देखेंगे ये पर्टिकुलर पैच में हमें salinity इश्यू था. तो फिर हमने आई विल शो यू हियर.
यहाँ पे देखिए, दिस इज नॉट द सैलिनिटी, ये हमने हमारा जो एक्सप्लोरेटरी वेल था, बेस्ड ऑन दोज डेटा हमने इसका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल व्यू बनाया. अगेन हमने यहाँ पे रिचार्ज के लिए साइड दिए कि दीज आर द साइड्स वेयर यू कैन गो फॉर रिचार्जिंग. So as I said, these are the particular areas जहाँ पे हमें salinity issue मिले. Again, with proper cement sealing, we can tap the deeper aquifer. Okay. And the very last thing, that is the public awareness. Unless and until the people at the grassroots level understand the issues, it becomes very difficult to manage this. And it's difficult for us to come out of this challenge. So public interaction के लिए भी हमने बहुत सारे programs किए to make them aware, to make them feel the issues and the real challenges that they are going to face. And lastly, the very important thing, that we don't want this to be left behind. Since you are the future generation, it's very, very important for you to understand. आप कोई भी department में हो, कोई भी sector में हो, but this is your lifeline. So you need to understand. कहीं भी आपको लगता है कि no, this is somewhere I should intervene, I should let people aware. So definitely आपको करना चाहिए as a responsible citizen of the country, because you're the youth, you're educated, so definitely you can help the country to come out of this challenge. So let's join hand together before the water goes out of our life. Thank you. Anything, अगर आपको लगता है कोई हम interaction कर सकते हैं, so do let me know. We do have a training institute. कोई particular चीज में, I don't know on which field, but since this particular seminar is on artificial intelligence, I must say काफी scope है. Ground water को लेके, ground water and artificial intelligence, we are having a lot of data. So with those data, we can have the flow models, you can have the quality models also. So if you can work on it, do let us know. So definitely, so with you, we can definitely move ahead and do a lot of things. Thank you. Thank you. Thank you. Definitely a new subject, so they might be collecting it from which side you can collect the data regarding the which side, government side we can collect. Government side. Since I showed you now, there is integration of so many data, like groundwater data. We are the apex organization, we are having the data. Okay, Central Groundwater Board, then State Groundwater Department, they are having the data. Rainfall data from IMD, well census data, again the State Groundwater Department from NABARD, then population data from census. So it's an integration of many data. How people like can work on this? Okay, like We don't have this much requirement or no, definitely. I think nowadays, like if you look at go through our site, that is cgwb.gov.in, all the data, whatever we have compiled, is available for every district, every state. Let it be for the state of Chhattisgarh, all over India. I said now by 2023, this entire project is going to be completed. Okay, so all the states, they have already uploaded the figures, already uploaded the data. So water label data, you can visit the India virus site. Long-term data are available there in Excel sheet. You can download it in Excel sheet. And once this 2023, the first phase is over, in NAQUIM or Aquifer Mapping 2.0, what exactly we are doing? We have identified the major issues. We have given a broader overview. This is the aquifer system of this state of Chhattisgarh or the state of Odisha or for your block. Now, again, there are some issues which are more challenging. So we have picked up those issues. And in Aquifer Mapping 2.0, we will be working on that. So that will be village-wise, because any issue, it has to be managed at the village level only. So again, we are working on that. From March 23rd, we will be working on Aquifer Mapping 2.0. Okay. So do request artificial intelligence and this groundwater, we can definitely work on it, because in groundwater, now Central Groundwater Board is installing digital water level recorder. Okay. So with that, you can get hourly data.